इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to our Saturday. A very good afternoon, each one of you, to our business opportunity over webinar series. This is our Sunday special, and today we have got a business opportunity for you from pharma industry. Franchise India teams welcomes you to 297th edition. Franchise India is a platform which is helping all investors in getting the business solutions so that they can take conscious and informed decision about selecting a right business. And we truly claim no one sells more business than us, because we have helped more than 78,000 investors in selecting the right business from us. It is our privilege to invite and welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. They'll be sharing their insights, their suggestions and views so that we can take a right decisions about the business opportunity. But before that, it is our privilege to, and it is a sort of a token to each one of you who is signing the deal with us during these Navratras, a small token of gift from our side, 100-gram silver coin, in case you finalize any deal with us. The brand which we are representing today is Dava Discount. Dava Discount is leading and fastest growing pharmacy retail brand from Maharashtra. Incorporated in 2015, the brand is from Rajneesh Wellness Limited, which is a BSE listed company, and they have their presence in Pan India with their 60 plus CNF agents, and they have 550 plus super stockists. And we invite and welcome team of Dava Discount, Mr. Mihir and Ms. Sanjri, for this great opportunity. Thank you both of you for joining us today. Thank you, Mihir. Thank you, Sanjri, for joining in. Over to you so that we can have a formal presentation from your side. Hello. Good afternoon. Thank you so much. आज हमें join करने के लिए. Good afternoon, madam. Good afternoon, everyone who has joined here to this webinar. And I would like to thank everyone who has come here to listen to our presentation and listen to the concept of Dava Discount. I hope everyone is safe at home. I would advise everyone to wear mask and properly wash your hands. This is for the safety of everyone present over here. We at Dava Discount would like to encourage and would like to invite most of the franchisees to participate and to know the concept of Dava Discount. As we all know from past 1 year and to the coming years, what importance pharmaceutical and Dava will play in the coming years to play. To know in brief and more detail about Dava Discount, my colleague and my senior Ms. Sanjri Kashyap will take you ahead. I'll pass on the mic to Ms. Sanjri Kashyap. She'll take you ahead. Thank you. Hello, everyone.
Just ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, just to the point, we will start the presentation, Dava discount. I am audible to all of you, ma'am, Archana ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much for joining in. आप हम सुन सकते हैं, ma'am. Should we start the presentation? Yes, ma'am. Surely. Sure. Thank you, ma'am. जैसा कि आप सभी को पता है, दवा डिस्काउंट इट्स अ लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मेसी रिटेल ब्रांड. So we start the presentation. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेंट है हमारे, जो हम इस प्रेजेंटेशन में पूरा इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी विद रिटेल एंड प्रोफाइल ऑफ आवर कंपनी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दवा डिस्काउंट एंड फ्रेंचाइजी प्रपोजल व्हाट वी आर गिविंग फ्रॉम. सो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी. जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बिग थिंग है जो कि कभी भी डाउन नहीं होने वाली है. ये अपकमिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है. इसमें मेडिकल बिजनेस जो अपना है, एवर ग्रोइंग बिजनेस. एंड अभी अपने कोविड-19 में क्या देखा, 3 तरह के बिजनेस अपने चल रहे थे. एक अपनी दूध की दुकान है, सब्जी, ग्रोसरी, एंड तीसरा इज द मेडिसिन. मेडिसिन ही एक ऐसा बिजनेस है जो कि फार्मेसी इंडस्ट्री, जो कि पैंडेमिक टाइम में ये चल रहा है कि एवर ग्रोइंग बिजनेस है, कभी भी ये स्टॉप नहीं होने वाला है. सो एसेंशियल सर्विसेज में ये अपना आता है. और मेडिकल बिजनेस, फार्मेसी इंडस्ट्री जो कोविड-19 में अपने साथ में जुड़ते हैं, तो ये एवर ग्रोइंग बिजनेस है. तो आजकल की करंट लाइफस्टाइल में जो हमारी लाइफस्टाइल है, अर्बनाइजेशन, वर्क प्रेशर और जिस तरीके की सारी टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज है, ये सीधा का सीधा हमारी सेहत पर असर करता है. और जो यूसेज ऑफ मेडिसिन है, जैसे जैसे अपनी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे अपना यूसेज ऑफ मेडिसिन भी बढ़ता जा रहा है. सो रिटेल फार्मेसी की मार्केट ग्रोथ जो मैं आप लोगों को यहाँ शेयर कर रही हूँ कि फार्मेसी इंडस्ट्री जो ग्रोथ है, इट्स अ लीडिंग. और आज एक यही है कि जो अपनी लाइफस्टाइल है वो अपनी इनडायरेक्टली हमारे जो मेडिसिन का यूसेज को बढ़ाती है. तो फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ यहाँ पे सुपर्ब है. तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन दोनों में अंतर क्या है. सो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो स्टोर है वो ब्रांडेड मेडिसिन स्टोर है. सो मैं एक्सप्लेन करूंगी, जेनेरिक नहीं है. ब्रांडेड मेडिसिन ये है कि सेवरल इयर्स ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी ये ब्रांडेड मेडिसिन अप्रूव होती है और जेनेरिक मेडिसिन में लेस R&D लगती है. ओरिजिनल होती है ब्रांडेड मेडिसिन और ये ब्रांडेड मेडिसिन इसकी कॉपी होती है. देन एक्यूरेट एंड स्टार्टेड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशंस, ये एकदम एक्यूरेट ब्रांडेड मेडिसिन होती है और ये दोबारा बनाई जाती है वेरिएशन ड्यूरिंग रीफॉर्मुलेशन. इसका शेप, साइज, कलर आप देखेंगे काफी डिफरेंट रहता है. ये काफी महंगी होती है और जेनेरिक मेडिसिन थोड़ी सस्ती होती है. प्रॉपरली पैक्ड है और ये लूज सोल्ड होती है. क्विक टू हील है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है ठीक होने के लिए. एंड प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट है. इन शॉर्ट, के लो कॉस्ट वर्जन ऑफ ब्रांडेड ड्रग्स है. इन शॉर्ट बोलूंगी तो ब्रांडेड मेडिसिन जो है हमारी 24 कैरेट का सोना है एंड जेनेरिक मेडिसिन ये अपना 16 से 18 कैरेट का सोना है. इट्स अ मैटर ऑफ एफोर्डेबिलिटी एक्चुअली, कि एक जो अपनी जनता है, जो 135 करोड़ की आबादी है, वो हर महीने 700 रुपए की स्ट्रिप्स इंटू 5, अगर 5 स्ट्रिप्स हमें खानी है तो हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है. तो इसी तरीके से ब्रांडेड मेडिसिन अपनी जेनेरिक मेडिसिन मैटर ऑफ एफोर्डेबिलिटी है, दोनों ही अच्छी है. अभी हम देख लेते हैं हमारी कंपनी का ओवरव्यू. सो वी आर अ रजनीश वेलनेस लिमिटेड. वी आर इनटू अ वेरियस सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं. हमारे खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इन प्रोडक्ट्स का, मेडिकल स्टोर्स में हमारे ये मिलते हैं. ओवरऑल मैं बोलूंगी 21 स्टेट में हमारे ऑलरेडी पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसमें हमारे 1 लाख स्टोर्स में हमारा ये प्रोडक्ट बिकता है. सो अवर जो ब्रांड है दैट इज आप लोगों को काफी पता होगा, प्लेविन ब्रांड है अवर लीडिंग प्रोडक्ट. प्लेविन एनर्जी कैप्सूल्स, प्लेविन ऑयल, प्लेविन राजा मुराद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. तो दीज आर आवर प्रोडक्ट्स. रजनीश लोशन टीचिंग सेगमेंट में भी हम हैं. दांत खाद खुजली के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है रजनीश लोशन, अवर लीडिंग प्रोडक्ट. देन पाइलो हर्ब्स, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा है. एंड अपना प्लेविन कॉन्डम, एंड इसके साथ में अवर लीडिंग प्रोडक्ट प्लेविन फीमेल कैप्सूल फॉर कसाव. देन सुदांता, ये दांतों के लिए. एंड उसके बाद मदमृत, ये अपना बालों के लिए. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, ये जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये 21 स्टेट में ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस हैं. और मोर देन 1 लाख जो मेडिकल स्टोर्स में हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सेल होते हैं. So these are the products which we are Rajneesh Wellness Limited के. So now we are talking about the concept of
दवा डिस्काउंट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली दवा डिस्काउंट? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, दवा डिस्काउंट। सो दवाइयां डिस्काउंट रेट पे आप लोगों को करवाते हैं। ये डिविजन ऑफ रजनीश वेलनेस है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ आया है, जो कि काफी हम पूरे स्टेट में ऑलरेडी हमारा पैन इंडिया प्रेजेंट है और हम कवर कर रहे हैं पूरी स्टेट को। सो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ऐसा कि हमको दवाइयां काफी रीजनेबल रेट में, कह सकती हूँ कि डिस्काउंटेड रेट में हमें कस्टमर्स को देनी है। तो हमारा 20 से 25%, यस यू आर हेयरिंग राइट, 20 से 25% का डिस्काउंट हम कस्टमर्स को देते हैं फ्लैट। और हमारा मिशन है कि हमें मोर देन 1000 फ्रेंचाइजी हमें आने वाले वक्त में खोलनी है। एंड हमारी CSR है, देखिए पैसों से हर किसी की मदद नहीं की जा सकती, लेकिन यस अगर दवाइयां जो डिस्काउंट रेट में हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये लोगों को करवाते हैं तो एक एसेंशियल सर्विस में हमारी ये दवाइयां आती हैं, और दवाइयों को एक रीजनेबल डिस्काउंटेड मैक्सिमम डिस्काउंट में देने में आप दुआओं के साथ में पैसे भी कमाते हैं। So why only दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी? See, these are the benefit कि आप दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे। सबसे पहला मैं पॉइंट लूंगी कि लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न, मतलब कि आप कम लागत से ये बिजनेस स्टार्ट होता है और बहुत ही कम समय पे ये आपको हाई रिटर्न्स देता है। कहूंगी स्टार्ट अर्निंग इन शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि फर्स्ट मंथ से इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल, जो कि आपको फर्स्ट ही मंथ से आपको इन्वेस्टमेंट आपको आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। देन सेकंड ऑप्शन है अपना गुड करियर ऑप्शन, इवन फ्रेशर कैन स्टार्ट, यानी कि इतना सरल और इतना सिंपल हमने इस पूरे मॉडल को बनाया है कि कोई भी फ्रेशर, मतलब कि फ्रेशर बोलेंगे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री का, या उनके पास कोई डिग्री नहीं है, या उन्होंने कभी कोई मेडिकल स्टोर रन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इवन फ्रेशर कैन स्टार्ट। इतना हमने बहुत ही सिंपल इसको पूरा ऑप्शंस बनाया है, मॉडल सेट किया है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, दैट इज द थर्ड पॉइंट, मोनोपोली इन अ पिन कोड एरिया। ये एक बहुत ही अच्छा है कि मोनोपोली इन पिन कोड एरिया की आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेने का जब आप ये सोचते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपके पर्टिकुलर पिन कोड में, आपके पर्टिकुलर उस जोन में हम एक भी फ्रेंचाइजी दूसरी सोल नहीं करते। तो देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट। से फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे आजकल एक लाइन में, एक गली में हमारे पास कुछ नहीं तो 10 से 15 बहुत सारे मेडिकल्स होते हैं। सो हमारी फ्रेंचाइजी अगर आप एक जगह पे लेते हैं तो वहां पर आपके इर्द गिर्द कोई भी आपके मार्केट में दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप फ्रेशर कैन स्टार्ट, हमने इतना इजी मॉडल बनाया है कि एक कोई फ्रेशर व्यक्ति भी उसको कर सकता है। सो एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए हमें ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है, फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत होती है, देन बिलिंग सॉफ्टवेयर। सो हमारी तरफ से एज अ कंपनी आपको हर तरह की कॉर्पोरेट HR असिस्टेंट दी जाती है। स्टाफ रिक्रूटमेंट कोई टेंशन नहीं, कोई झिझक नहीं। आपको फार्मासिस्ट चाहिए, आपको स्टोर हैंडलर चाहिए, हेल्पर चाहिए, जो भी एक मेडिकल सेटअप करने के लिए आपको एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, कंपनी आपको पूरा असिस्टेंस करती है। देन आप आते हैं कॉर्पोरेट टेक्निकली, किस तरीके से उसकी बिलिंग होती है, किस तरीके से आप पूरा मैनेजमेंट करते हैं, स्टॉक किस तरीके से आपको प्लेस करना है, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग, सॉफ्टवेयर, हर चीज का टेक्निकल सपोर्ट भी आपको कंपनी करती है। अब कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट की हम बात करते हैं। अभी अपने पास पैसे हैं, हमने हर कोई एक व्यक्ति बिजनेस को अपने डाइवर्सिफाई करने के लिए सोच रहा है कि अभी जो करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हर किसी के बिजनेस को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सो एक राइट टाइम टू इन्वेस्ट कह सकते हैं, एंड राइट टाइम टू ओपन योर ओन एसेंशियल सर्विस एंड ओन मेडिकल स्टोर करने के लिए। अभी आपने खोल दिया, लेकिन उसकी एक टेंशन होती है कि सेल्स एंड मार्केटिंग, ये एक बहुत है कि यार अपने पैसे आपने लगा दिए, ये अपना बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सी इसका जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग जो प्रेशर है कंपनी अपने ऊपर लेती है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कमिंग विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। 20 से 25% का डिस्काउंट इज अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट। सो इट्स अ वेरी सिंपल कि जो उसका सेल्स प्रेशर है और जो उसका टारगेट है कंपनी ये अपने ऊपर लेती है। साथ में आपको गारंटी देती है कि महीने का मिनिमम आप 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की इनकम को आप कमाएंगे, एंड यदि ये कमाई आपकी कम होती है तो कंपनी उस शॉर्टफॉल अमाउंट को भर के भी देती है। किस तरीके से हम आगे लेंगे? See, advantage of owning a business monopoly, दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी, सिंगल स्टोर इन वन पिन कोड। अगर हम वन पिन कोड में एक सिंगल में हम एक ही स्टोर करते हैं, एंड इसके बाद में हमारा यूएसपी कॉन्सेप्ट है कि जो हम फ्लैट 20 से 25% का डिस्काउंट हम मेडिकल स्टोर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी यूएसपी है। कोई भी रिटेलर आज एक भी मेडिकल स्टोर 20 से 25% का फ्लैट डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को नहीं दे रहा है। सो वी आर कमिंग विद दिस कॉन्सेप्ट कि हम कस्टमर्स को फ्लैट 20 से 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके लिए आपका कंपनी ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग में बहुत फोकस करती है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है, मूवी में बहुत ही सुपर स्टार कास्ट लिए हैं,
लेकिन आपने उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग प्रमोशन पे ध्यान नहीं दिया है, तो क्या होगा? कंपनी, क्या वो मूवी चलेगी? जाहिर सी बात है कि वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन अगर उनके कंटेंट में दम है, उसके कॉन्सेप्ट में, उसकी स्टोरी लाइन में दम है, तो आने वाले 8 महीने 9 महीने में वो मूवी भले नए स्टार कास्ट हो सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रांडिंग मार्केटिंग प्रमोशन उस मूवी का बहुत ही बेहतरीन हुआ है, तो फर्स्ट 3 दिन में, 4 दिन में आप ब्लॉकबस्टर 400 करोड़ 600 करोड़ का आप ये देखते हैं। सेम कनेक्ट में आपको ये चीज करती हूँ, दवा डिस्काउंट से कॉन्सेप्ट बहुत ही यूएसपी है, बहुत ही यूनिक है। 20 से 25% जो कि कोई भी आज की तारीख में रिटेल में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। वी आर द फर्स्ट वन, वी आर स्टार्टिंग विद अवर दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी रिटेलिंग ब्रांडेड मेडिकल्स में। तो यही चीज है, ब्रांडिंग मार्केटिंग आप इतनी अच्छी उसकी करते हैं कि कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। कंपनी ये चीज कहती है कि आपके फर्स्ट 3 मंथ्स में आप ब्रेक इवन को आराम से टच कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। और अगर हम तो ये कहते हैं फर्स्ट मंथ से ही आपको नुकसान नहीं होगा, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। लेकिन फिर भी हम आपको एश्योर्ड फर्स्ट क्वार्टर हम आपके साथ हैं, हम आपको 1 लाख रुपए मिनिमम गारंटी देते हैं कि आप ये चीज की इनकम करेंगे। नहीं करेंगे तो हम आपको भर के भी देते हैं। सो इससे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आपकी ग्रोथ होगी। आप अपने पिन कोड में अकेले हैं तो काफी आपको डिस्काउंट और ये चीजों से कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे, और पूरा शॉर्टफॉल अमाउंट जो भी आपका ये चीज है, इससे आपकी एक्सेलरेट ग्रोथ होती है। सो लेट्स फ्रेंचाइजी प्रपोजल हमारा क्या है, हियर आई एम शेयरिंग यू। सो लेट्स द बिजनेस ऑफ फार्मा टुगेदर। फ्रेंचाइजी मॉडल में हम आते हैं कि एक ही हमारा जो 12.5 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसमें आपको मिनिमम कारपेट एरिया 200 कारपेट आपको चाहिए होता है, 200 स्क्वायर फीट। इससे कम नहीं चलेगा, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ड्रग लाइसेंस निकालने के लिए आपको एक मिनिमम 180 टू 200 स्क्वायर फीट चाहिए ही होता है। सेकंड, इस 12.5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए कंपनी इसमें मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए करती है, जिसमें आपकी हर तरह की मार्केटिंग ब्रांडिंग की जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड, व्हाट्सएप मैसेज, न्यूज़पेपर, देन बस स्टॉप, सोशल मीडिया, हर तरह का हम इसमें ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करते हैं। हम ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं तभी हम आपको फर्स्ट 3 मंथ्स एश्योर करते हैं कि आपका मिनिमम गारंटी देते हैं कि 1 लाख से आपका जो टर्नओवर है, जो इनकम है, वो इनकम है जो वो कम नहीं होगी। ब्रांडिंग मार्केटिंग इसलिए भी करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल और लेती हूँ, फ्री की चीज भी अगर आपको देनी है ना, एक साड़ी का सेल करना है, फ्री किसी चीज भी करने के लिए भी, वो मार्केट में देने के लिए आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो 3 लाख रुपीज है, इसमें कंपनी आपके पर्टिकुलर उस पिन कोड में, पिन कोड बहुत बड़ा होता है, आपका पर्टिकुलर एरिया बहुत बड़ा होता है, उसमें हम ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं और आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि सारा जो अपना फुटफॉल है वो अपने स्टोर में आता है, तभी हम आपको इनकम की गारंटी देते हैं। सी, एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एज अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो फ्रेशर है तो एक फार्मासिस्ट आपको चाहिए होता है, और एक स्टोर हैंडलर चाहिए होता है, एक हेल्पर चाहिए होता है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट पार्ट है और इसका जो ट्रेनिंग पार्ट है, कंपनी विल टेक केयर। सो नेक्स्ट है 45,000, जो ये एंट्रेंस बोर्ड है। मैं आपको ये बताती हूँ कि एंट्रेंस बोर्ड एक इस तरीके का है अपना। एंट्रेंस बोर्ड जो ये है, इसमें आपको मेंशन रहता है, ये एसीपी की शीट पे एक्रेलिक लेटर्स के साथ में लाइट वाले लेटर्स हैं। ये इस एंट्रेंस बोर्ड पे लिखा रहता है 25% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल ब्रांडेड मेडिसिन ऑन अबव बिल ऑफ 2,999, मतलब 3,000 की खरीदी करने पर आपको 25% का डिस्काउंट है। एंड दूसरी तरफ है 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल ब्रांडेड मेडिसिन। चाहे आपने 100 रुपए की चीज खरीदी हो, चाहे आपने 2,000 की, आपको हर एक छोटी सी भी मेडिसिन की परचेज पर आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। साथ में कंपनी का नाम आता है दवा डिस्काउंट, एंड यहाँ पर आपका नाम है। ये सारा मेडिकल स्टोर आप समझिए, जो मेडिकल स्टोर आप खोलना चाहते हैं आपको नाम रखेंगे। ड्रग लाइसेंस इसके नाम पर होगा जो मेडिकल स्टोर आप रखना चाहते हैं। साथ में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, आपके 2 नंबर यहाँ पे मार्केटिंग के होंगे, और जो भी रीजन में होगा वो एक लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा, और आपका जीएसटी नंबर। तो इस तरीके से अपना मेन जो ये बैनर है ये मिलता है। साथ में वापस आते हैं, ये 45,000 में आप देख सकते हैं रनर बोर्ड, जो स्क्रॉलर बोर्ड होता है, ये 6 फीट लॉन्ग 8.5 इंच विड्थ का स्क्रॉलर बोर्ड मिलता है, जिसमें अपना ऑफर हमेशा रन करता रहेगा। साथ में ग्रीन क्रॉस जो 1.5 बाई 1.5 का है, ये आपको मेडिकल स्टोर के सामने पर लगाते हैं, वो है इंटरनल ब्रांडिंग एंड विनाइल एंड सन बोर्ड। सो इस 45,000 में हमारा ये पूरा पैकेज इंक्लूड होता है। देन बात करते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर की, जिससे आप कस्टमर्स को बिलिंग करेंगे, आप हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, इसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं। सो बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि 36,010 का है। देन ब्रांडिंग कोलैटरल्स में हम कहेंगे स्टैंडी, विजिटिंग कार्ड, फ्लायर्स, टी शर्ट्स, कैप्स, ये सारी चीजें जो कि 10,000 है। देन रेफ्रिजरेटर, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स कुछ दवाइयों का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। सो 14,990 इज फॉर द फ्रिज के लिए है, ये जो आपको लेना ही कंपलसरी है। देन हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन एन ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमने 5 लाख से रनिंग इन्वेंट्री ये स्टार्ट की है। ये आपको 70:30 के रेशियो में मिलती है।
70% आपको ब्रांडेड मेडिसिन मिलती है एंड 30% में आपको OTC प्लस आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है। एक मेडिकल सेटअप करने में चार चीजें यूज होती हैं। एक अपना ब्रांडेड मेडिकल स्टोर, ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, देन उसके बाद अपना OTC प्रोडक्ट होता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, देन इसके बाद में जेनरिक मेडिसिन एंड जनरल आइटम्स। ये चारों चीजों से इनके साथ में ये अपने ये स्टॉक्स में होते हैं। इन सब से एक मेडिकल स्टोर एक रन करता है। हमारी फ्रेंचाइजी फीस है जो कि 250 प्लस 18% GST 295 आती है। And DLFL other compliance, that is a drug license, food license and other compliance के 50,000 रुपीज हैं। तो ये चीज आपकी लाइसेंस एंड अदर कॉम्प्लाइंसेस में यूज होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल अपना जो फ्रेंचाइजी का है वो 12,51,000 का आता है। एंड इसके बाद में अपन ये चीज देखते हैं। देन ये हमारी एक फ्रेंचाइजी है जो कि अभी जस्ट लेटेस्ट काफी बन के रेडी हुई है अपने मुंबई में। इस तरीके की अपनी फ्रेंचाइजी का पूरा लुक होता है। देन इसके साथ में इस तरीके के इसके अंदर के पूरे कारपेंट्री वर्क और ये सारी चीजें एक थीम है, पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में मैं आपके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल सपोर्ट ये चीज लेती हूँ कि कंपनी किस तरीके से अपना फ्रेंचाइजी मॉडल और एक मेडिकल स्टोर का जो है वो रन करता है। कंपनी आपको फ्लैट 26% ऑफ पे आपको बिलिंग करती है। 26% डिस्काउंट में बिलिंग करने का मतलब है कि कोई भी चीज जो 100 रुपए की आती है आप उसमें 26% डिस्काउंट करते हैं, मतलब कंपनी आपको पड़ती है 74 रुपीज में। फ्लैट 26 का मतलब है हर तरह की ब्रांडेड मेडिसिन 26% डिस्काउंट में। जो एक नॉर्मल मेडिकल को अगर उसका एवरेज करेंगे तो 20 से 22% में आता है। दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी में आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको फ्लैट 26% में आता है। सो ये बहुत बड़ी यूएसपी है। कोई भी पूरे ओवरऑल इंडिया में अपन कहेंगे तो एक मेडिकल स्टोर को 20 से 22% की मार्जिन में ही मेडिसिन आती है। अब ये चीज बात करेंगे कि हमें किस तरीके से ये रेशियो सेल्स का टर्नओवर करना है। आपको 90:10 के रेशियो में अपना सेल्स करना है, यानी कि 20% डिस्काउंट आपको फ्लैट 26% आता है, उसके लिए आपको फ्लैट 20% आपको कस्टमर को दे देना है और एक फ्लैट 25% डिस्काउंट आपको 2,999 की खरीदी पे देना है, जो कि आपका ये रेशियो होता है 90:10 के रेशियो में। 90% आपका जो सेल है वो क्लोज होगा 20% पे। चाहे कस्टमर 100 रुपए की दवाई ले, चाहे 1000 रुपए की ले, आपको 20% डिस्काउंट उसको फ्लैट देना है। और एक 10% का जो अपना बिजनेस का टर्नओवर है वो आपका होगा फ्लैट 25% पे 2,999 पे बराबर। अगर मान लीजिए 10% से कल को ये रेज होता है 15%, 20% अपना ये परसेंटेज जब ऊपर जाता है तो आप ये 2,999 की वैल्यू को 3,999, 4,999 कर सकते हैं। एक नॉर्मल मेडिकल शॉप को 20 से 22% पे आता है और वो मैक्सिमम डिस्काउंट 10 to 15% दे पाता है। अगर 20% पे आया है, 15% अगर वो डिस्काउंट देता है ब्रांडेड मेडिसिन में तो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है सिर्फ 5%। यहाँ दवा डिस्काउंट की फ्रेंचाइजी में 26 में आपको खरीदी पे आता है और आप फ्लैट 20% कस्टमर को देते हैं तो आपको मार्जिन बचता है स्ट्रेट 6% का। अब हम आगे देखते हैं OTC प्रोडक्ट, जो हमारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। एक मेडिकल स्टोर से, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रांडेड मेडिसिन, OTC, जेनरिक एंड जनरल से आपकी पूरी मेडिकल स्टोर बनती है। तो OTC प्रोडक्ट में अपना 10 से लेकर 40% तक का मार्जिन होता है, जो कि हम एवरेज करेंगे तो 20% का अपन को एवरेज बचता है। जेनरिक प्रोडक्ट्स देखिए से हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन एक मेडिकल स्टोर में अगर कस्टमर मांगता है तो अपन उसको खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते। सो वी कीप द जेनरिक मेडिसिन आल्सो। इसमें अपना 10% से लेकर 90% तक का मार्जिन होता है। एक एवरेज करने जाएंगे तो 50% अपन को उसमें बचता है। जनरल प्रोडक्ट, कंपनी जनरल प्रोडक्ट रखती नहीं है, जैसे कि अपना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड पानी का बॉटल, देन डेयरी मिल्क, किंडर जॉय, दीज आर ऑल द कम अंडर जनरल एंड FMGC प्रोडक्ट्स। कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन यस आप मेडिकल स्टोर का सेटअप करते हैं तो आप ये एज पर योर ओन डेफिनेटली रख सकते हैं। उसकी मार्जिन अगर हम देखेंगे 10% से लेकर के 50% तक की उसकी मार्जिन होती है, जो कि हम एवरेज करने जाएंगे तो 25% का आपका मार्जिन बचता है। अब एक मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड मेडिसिन में हमको 6%, OTC में 20%, जेनरिक में 50% एंड जनरल स्टोर, जनरल आइटम में 25% का मार्जिन होता है। इसका पूरा ओवरऑल सेल्स का टर्नओवर करते हैं तो अपना 15 से 20% का मार्जिन होता है। अब किस तरीके से कंपनी आपको एश्योर्ड इनकम करती है, मैं ये चीज बताती हूँ। मान लेते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि कंपनी का अपना फर्स्ट मंथ का टर्नओवर 5 लाख रुपए का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना सेल्स टर्नओवर 15 से 20% का मार्जिन होता है, तो 5 लाख का 15% अपना कितना होता है 75,000। कंपनी ने तो कहा था कि 1 लाख रुपए करेगी फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो 1 लाख रुपए से जो भी चीज कम होती है वो 25,000 का शॉर्टफॉल कंपनी आपको क्रेडिट करके देती है, यानी आपको चेक से देती है। सो आपका 1 लाख पूरा करती है।
सेकंड मंथ में हम देख लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपीस का सेल करते हैं, जिसमें आपका 15% मार्जिन हम देखते हैं 1,50,000 होता है। आप 1 लाख के अमाउंट को क्रॉस करते हो, कंपनी आपको भर के फिर नहीं देती है। थर्ड मंथ जो 20 लाख का, ये कंपनी का टारगेट होता है कि विद इन इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं, अपन इस एरिया में अकेले हैं जो 20 से 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि आपका बाजू वाला शॉप अगर 10% दे रहा है और आप 20 दे रहे हैं, तो कस्टमर जहां ज्यादा डिस्काउंट है वहां अट्रैक्ट होते हैं। सो 20% आपका 20 लाख रुपीस का आपका जो टर्नओवर होता है उसका 15% देखेंगे तो 3 लाख रुपीस आपकी इनकम होती है। अब ये 60K और 70K एक मेडिकल स्टोर नॉर्मली विदाउट डिस्काउंट जो चलता है, वो नॉर्मली आप समझिए कि 35 से 45 नॉर्मल मेडिकल स्टोर का कलेक्शन डेली का होता है। आप डिस्काउंट देते हैं और ये चीज हम इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये 60K to 70K पर डे की कंपनी के पूरी टीम है जो ये R&D करती है, जो हम रिसर्च करते हैं। सो ये पूरा मार्केट स्टडी करके हम ये आपको फिगर बता रहे हैं कि 60K से 70K पर डे का इट्स वेरी सिंपल हम कर सकते हैं। इसके सामने हम देख लेते हैं कि हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक फार्मासिस्ट जिसकी 15 से 18,000 तक की अपनी सैलरी होती है। एक स्टोर हैंडलर जो कि प्रिस्क्रिप्शन देख के अपनी दवाइयां स्टोर से निकाल के देता है, जो कि 12,000 रुपए में आता है। एक डिलीवरी बॉय जो कि 8 से 10,000 की कीमत में आराम से आ जाता है, प्लस साथ में बारकोडिंग और ये सब चीजों में सपोर्ट करता है। सो आपका 35 to 40,000 आपका मैक्सिमम एक सैलरी पे एक्सपेंस होता है। 200 स्क्वायर फीट की जगह अगर हम 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखते हैं, तो रेंट अपना 20 से 25,000 रुपए तक के बीच में होता है। ये अपना 55,000 पड़ता है, प्लस एक 5,000 का आपने लाइट बिल जोड़ा तो 60,000, 10,000 आप मिसलेनियस जोड़ लीजिए तो आपका 70,000 का फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपना होता है। कंपनी आपको फर्स्ट 3 मंथ्स तो इस बात की श्योरिटी देती है कि 1 लाख से आपका कम नहीं होगा। तो 1 लाख में और 70 आपका खर्चा है, तो आप प्लस 30,000 में है। मतलब ये फर्स्ट महीने से आप रिस्क फ्री बिजनेस में है, प्लस आपका रेंट, सैलरी, जो भी चीजों का खर्चा है, ये चीजों का टेक केयर हो जाता है। और 3 महीने बहुत होते हैं। नॉर्मली बिजनेस में सर जरूर टाइम लगता है, लेकिन एक मेडिकल स्टोर को 3 से 6 महीने बहुत सही टाइम होता है। इतने डिस्काउंट के साथ देते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से ब्रेक इवन के ऊपर में आ जाते हैं। तो एक ये है अपना डिटेल P&L एस्टिमेट, ROI एस्टिमेट हमने किस तरीके से किया है। एक पूरी हमारी टीम जो ये चीज करती, एक मेडिकल स्टोर में दिन भर में नॉर्मली बोलूंगी तो 60 से 70 लोग विजिट करते हैं। हम सिर्फ उसको बहुत ही एक रियलिस्टिक फिगर पे हमने सिर्फ 50 लोगों को पकड़ा है, जिनका एक ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 625 रुपीज का हमने पकड़ा है। सो मंथली सेल आपका एक 9 लाख समथिंग का होता है। और आप इसका देखेंगे कि इस तरीके से 9 लाख का होता है, और आपका जो पर डे जो मैंने बताया 30 से आपका 35,000 के तकरीबन में आपका सेल्स होता है। और इसके साथ में अपना जो खर्चा हो जाता है 7,625, जो कि मैंने बताया रेंट हो गया, स्टाफ हो गया, मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस। सो आप ये देखेंगे कि हमारा जो पे बैक मंथ्स है, आपने जो इन्वेस्टमेंट 12.5 लाख रुपए का किया है, 15 से 19 मंथ्स में ये आपको रिटर्न आ जाता है। सो इसकी जो मार्जिन है जो बिजनेस की, जो मैंने आपको बताया 15 से 20, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 17.2 का आपका मार्जिन रिटर्न है। तो हम यहाँ पे मिलेंगे कंपनी की डिलीवरेंस, जो की स्ट्रेंथ है। वी आर वेरी गुड एंड वेरी एक्सीलेंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग। वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम एंड लाइसेंस एंड कॉम्प्लायंसेस। वी आर अ लिस्टेड कंपनी, सो वी हैव आवर प्रोजेक्ट्स इन 21 स्टेट्स में, पैन इंडिया प्रेजेंस में है। गुडविल जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं। सो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, लेस इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न है, एंड फर्स्ट मंथ से ही आप प्लस 30,000 में होते हैं। एंड ये आपको रिस्क फ्री बिजनेस है, पहले महीने से ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज में है। क्रिएटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम्स है, सी दवा डिस्काउंट की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, सो वी आर हियर फॉर योर एनी प्रॉब्लम यू हैव क्रिएटेड। कुछ प्रॉब्लम होती है तो वी आर हियर कि हम आपको उसको सॉल्व करें। एंड वी आर द पायनियर, वी कैन से कि हम ब्रांडेड मेडिकल स्टोर्स में हम अपनी फ्रेंचाइजी लेकर के आ रहे हैं। सो हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरीके से हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये जो 5 स्टेप्स दिख रहे हैं, ये 7 डेज के हैं, तो ये 5 वीक्स हैं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब एक मेडिकल स्टोर को सेटअप करने के लिए आपको 35 से 40 दिन का आपको वक्त लगता है। सो फर्स्ट स्टेप आपको सबसे पहले ये करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको वो जगह डिसाइड करनी है, अपना पिन कोड डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर हमारे साथ आप मेडिसिन आप लेना चाहते हैं। सो जो भी पिन कोड आप चूज करते हैं, स्टेप 1 जो भी आप पिन कोड लेते हैं, इस पिन कोड को आप ब्लॉक करते हैं। और इसके बाद में सेकंड जो अपना वीक है, सेकंड स्टेप जो आपका है, स्टोर एग्रीमेंट करते हैं, हमारे साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करनी है। उस वक्त में आपको जो भी अपनी फ्रेंचाइजी है फीस है और जो अपना पूरा सेटअप कॉस्ट है वो आप पे करते हैं। इसके अलावा आप जो जगह आपने फाइनल की है वो स्टोर का आप एग्रीमेंट करते हैं। स्टोर एग्रीमेंट करने के बाद आप ड्रग लाइसेंस अप्लाई करते हैं।
सी जो स्टेप 2 है, ड्रग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए काफी आपको पेपर्स लगते हैं, फार्मासिस्ट के वो लगते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं, कंपनी यहाँ पे कहती है कि वो असिस्ट करती है, आपको फार्मासिस्ट करवा करके देगी। सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस हैं, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एंड उसके बाद स्टोर लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस को अप्लाई जब करते हैं तो ड्रग लाइसेंस आने में 25 से 30 दिन लगते हैं। इस दरमियान जब वो 25 से अप्लाई करने के बाद जो अपना वेटिंग पीरियड है 25 to 30 डेज लगता है। इस दरमियान में हम फर्नीचर की कॉस्टिंग, जो कि आपके फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में नहीं इंक्लूड है, वो अलग से आप समझ लीजिए 2 से 2.5 लाख रुपए का अलग से एक्सपेंसेस होता है। इस स्टेप 3 में हम फर्नीचर का इंस्टॉलेशन करते हैं। फर्नीचर इंस्टॉल करने में आपको 20 से 25 दिन लगते हैं। स्टेप 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री एनालिसिस। आपको इन्वेंट्री एनालिसिस वो इन्वेंट्री मिलती है जो कि आपके पिन कोड जो कि आपने सेलेक्ट किया है, इस पिन कोड की रनिंग इन्वेंट्री होती है। सी अगर आप अकेले अपना फ्रेंचाइजी विदाउट फ्रेंचाइजी आप एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आप 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं मेडिकल स्टोर खोलने में। आप पूरा पैसा आप स्टॉक में डालते हैं, 6 महीना आप चलाते हैं। 6 महीने बाद में आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे अपना पैसा वेस्ट किया, कहाँ पे आपने डेड स्टॉक परचेज किया है। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम जो इन्वेंट्री आपको देते हैं, जो आप ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख की लेते हैं, ये इन्वेंट्री आपको रनिंग इन्वेंट्री मिलती है। हमारी ऑलरेडी 21 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है, हमारी टीम पूरी ऑल इंडिया में है। जिस स्टेट में आप हमारे साथ में ये लेते हैं, हमारी टीम वहां पिन कोड की रनिंग इन्वेंट्री जो डॉक्टर वहां प्रिस्क्राइब करते हैं, R&D करती है, मेडिकल स्टोर के जो हाईएस्ट वहां पे सेलिंग जो मेडिसिन होती है उसकी पूरी लिस्ट बनाती है और आपको वो शेयर की जाती है। मतलब आप जो ओपनिंग 5 लाख की मेडिकल जो आप इन्वेंट्री लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, वो आपको रनिंग इन्वेंट्री मिलती है। अभी रनिंग इन्वेंट्री तो हमने आपको दे दी, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 3 महीना 4 महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ रनिंग इन्वेंट्री जो कि मूव नहीं हो रही है। सो व्हाट टू डू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूरा का पूरा जो भी माल आपका नहीं मूव हो रहा है, जो आपका स्टॉक नहीं मूव हो रहा है, वो आप हमको हमारे साथ में आप हमको वापस कर सकते हैं और उसके कोई डिडक्शन चार्जेस नहीं है, कोई ट्रांसफर चार्जेस नहीं। आप कोई भी दूसरा उसके सामने मेडिसिन ले सकते हैं। बात करते हैं अभी एक्सपायरी की। आपने कोई भी 2 महीने पहले से कोई भी मेडिसिन जो आपकी एक्सपायर होने वाली है या हो रही है, आपको पूरी एज इट इज वापस कर दीजिए। फ्रेश मेडिसिन ले लीजिए या दूसरी मेडिसिन ले लीजिए, सामने सामने सब इसका हो जाता है, कोई भी उसमें वो नहीं है। लेकिन एक बार आपके सॉफ्टवेयर में भी ऑलरेडी दिखता है कि ये नियर टू एक्सपायरी हो रही है, तो एक्सपायर होने से पहले आपको पूरी मेडिसिन आप वापस कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन एक बार अगर मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो 30% का डिडक्शन होता है। बात कर लेते हैं अभी अगर कोई चीज डैमेज होती है तो उसमें भी 30% का डिडक्शन होता है। बात करते हैं डिलीवरी ऑफ स्टॉक। डिलीवरी ऑफ स्टॉक, जो भी आप ऑर्डर 12, अगर आप रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में है तो जो भी ऑर्डर आप 12 बजे से पहले प्लेस करेंगे वो आपको नेक्स्ट डे आ जाता है। और अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हैं सो इट्स वेरी इजी, वो आपको 2 दिन में आ जाता है। सो डिलीवरी ऑफ स्टॉक मतलब जो बाहर हैं अपने साथ में, तो हम उनको वीकली 3 से 4 बार उनको हम डिलीवरी देते हैं। अब हम बात करते हैं, स्टॉक भी आ गया, डिलीवरी होगी, एक्सपायरी होगी, से इसके साथ स्टेप 5 हमारे सारे ड्रग लाइसेंस अप्रूव्ड हो गए, फूड लाइसेंस अपना आ गया, सारे अदर कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट हो गए, आपकी दुकान अपने स्टॉक आ गया, स्टॉक को आपने सजा लिया, इसके साथ में आपने दुकान का इनॉग्रेशन किया। सो अपनी दुकान खुल जाती है। बी द पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एंड बी योर ओन बॉस। So welcome to the team of Dava Discount, your gateway to golden future in medical growth. Thank you so much. Thank you very much. Very high energy presentation, very well presented. So thank you for giving us overview about the company. It's a listed company, and they are listed on small exchange, SME exchange. So we start with giving, when was the company listed? You want to give a highlight on that? When was the company listed on? So the company was listed in the year 2018, 9 July 2018. We were listed on BSE SME platform under the name of Rajneesh Wellness Limited. Okay. So under Rajneesh Wellness Limited, they are listed on SME Exchange. SME Exchange is a special exchange being made for SME businesses, and it gets an automatic to domain board after a certain time. So let's start with the USP of the business as explained, and I will just put some kind of summary, is that they deal into branded medicine. So there was a question somebody asked that there is a Dava India and this is Dava Discount. They're two different companies. Dava India is into generic medicine business. They are a branded medicine operator. And obviously they are right in saying that branded medicine, while generic medicine is also a huge opportunity in India,
but it still has to do its own life cycle. Branded medicine is well established, brands are established, doctors know how to recommend that, and obviously they are much more advanced through their clinical trials and their availability and so forth. So branded medicine is obviously required in particularly in some kind of diseases. I think the branded medicine is the only answer. Generic would not be able to replace that. So they are in a branded medicine structure. The USP of the business is discounting. So obviously they are the highest level of discount at about 25%, and which actually breaks into, if you order anything above 2,999, then you get 25. Otherwise, you get flat 20%. You get 26% discount on MRP, which means that you have a running margin of 6%. Now, there are many chains globally in the medicine space which use medicine discounting as a loss leader. And now medicine is a subscriber business. People need medicine regularly because if they have any kind of recurring structure, and if they know you get the highest discount from there, they become your subscribers, which means that you will attract a lot of audience or a lot of footfall to your place, which gives you an opportunity to do what I call 80-20. 80% of your product makes 20% of margin, and 20% of margin product make 80% of margin. So you need to be clever enough to understand then when you have a loss leader, then how do you ride the other products to improve your average margin spend, which means that would come from 3 other categories, which they said. One is OTC, over-the-counter product. Over-the-counter products are your personal care products, your wellness products, your single origin herbs, and a lot of other things which are Ayurveda, other things which are also very selling. And you would also have some general products, which the franchisee has ability to really do depending on his location is. I normally don't advise getting into too much of FMCG kind of product, because you never have a category and you will have a lot of dead stock in that because people don't expect you to sell. But a lot of other things you can do, like she mentioned water bottles and things like that, because you're in high traffic locations and people, if they want to have that would drive your certain sales. One franchisee has to be conscious that what marketplace you are in, that would really drive your potential. And finally, you also have some part of generic medicine, especially on some kind of long-term ailment medicines where people need to take discounted ones. And depending on the neighborhood also, if you are in a certain neighborhood where you have a pressure on cheap prices generic medicine, then that would need to change the mix of your branded and a generic medicine. They provide everything. So as they said, that 12.5 lakh rupees is total investment, 7.5 lakh rupees is your actually capital investment, and 5 lakh rupees is your working capital, which is against stock. So that's not so much of risk because stock you can sell anytime. 7.5 lakh rupees is actually your capex. From the return on investment, which she is showed, she has actually done the calculation of entire 12.5 lakh rupees for return on capital. But if you really do it only on a 7.5 lakh rupees, your payback is much faster because stock is not a risk, it's your working capital, and stock would change. Now, let me start with the first question is, what is your stock mix? If I have to take 5 lakh rupees stock, how much is branded, how much is OTC, and how much is private label? Because you also have your own products, which you promote under Rajneesh Wellness. How much is your OTC? And these are largely OTC product. And how much is any other category which you provide? And allied with this question is, you said that the sales would go to 60,000-70,000 rupees a day, which means that your monthly sales, if I take 5 lakh rupees as a wholesale price, and if I build 25% markup on that piece, no, actually markup would be higher. But if you take that price, your MRP would be about 8 odd lakh rupees. And in 8 lakh rupees, if you have to sell 18 lakh rupees, so we are talking about almost about 2.5 times stock turnover. So would the franchisee would be required to put more stock, because 2.5 would be very high turnover. Normally in pharmacy, it is 1 month cycle, 12 turnovers. So which means that if you have 18 lakh rupees of stock, you will sell 18 lakh rupees. So would it mean that franchisee would have to put more stock going forward as the sales start going in? You can start with the lower stock and then you can go on to higher stock. So give me two separate answers. One is, stock mix. What is the stock mix? And
would you require to improve stock levels as you go along? यस सर, सी जो आपको स्टॉक मिक्स की बात करते हैं, जो मैंने 5 लाख की बात की, दिस इज अ रनिंग स्टॉक। रनिंग स्टॉक मतलब कि आपको जरूरत नहीं कि बहुत सारा आप स्टॉक पे करें, लेकिन यस अगर हम बात करते हैं कि महीने का आपको 1 से 2 लाख कमाना है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि वो ओवर द टाइम पीरियड में आपको धीरे धीरे वो स्टॉक को इंक्रीज करना है। बट वी आर बेसिकली स्टार्ट विद 5 लाख रुपीज, इट्स अ रनिंग स्टॉक, बट डेफिनेटली आपको धीरे धीरे एक 3 महीने के उसमें आप मान के चल सकते हैं कि और आपको 5 लाख रुपए का, मतलब मोटा मोटी बोलो तो 10 से 15 लाख का आपका एक स्टैंडर्ड स्टॉक मेंटेन होता है, तो आपकी सेल बहुत अच्छी होती है। और आपको जैसे एक मेडिकल स्टोर एक रनिंग स्टॉक बुक मेंटेन करता है, कस्टमर्स के पास आते हैं, जो चीज उसको लिखवाते हैं, जब वो बंदा वहां पर मौजूद है, देखता है कि इस स्टॉक को बार बार अगर कंपनी डिमांड कर रही है, कस्टमर आके पूछ रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने स्टॉक में उसको ऐड करते जाता है। तो ये जो एडिंग है वो धीरे धीरे होती है। फर्स्ट स्टॉक में भी डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 10 लाख के स्टॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ के एक 15 लाख तक का स्टॉक जाता है। इसका कॉम्बिनेशन बोलूंगी तो डेफिनेटली 60% से 70% आपका ब्रांडेड मेडिसिन होता है, और धीरे धीरे ये ओटीसी और जनरल आइटम्स ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसमें जेनरिक आइटम में कहूंगी 10 to 20% ही होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ द लोकेशन, कहाँ पर क्या चीज ज्यादा चलती है, लेकिन डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब ब्रांडेड मेडिसिन। तो जो भी उस पिन कोड में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि वहां की रनिंग स्टॉक है, वो आपको मिलती है, और साथ में धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं। मिक्स में बात करेंगे तो यस, सेल मिक्स की भी बात करती हूँ। 60% आपकी मेडिसिन जाती है, 50-50 भी कह सकते हैं, डिपेंड कि आपने किस तरीके से स्टोर को मेंटेन रखा है, तो 50-50 भी कह सकते हैं। तो आपकी 50% आपकी मेडिसिन जाती है, 50% आपका ओटीसी जाता है, एंड जेनरिक मेडिसिन भी जाती है जिसमें मार्जिन बहुत हाई होता है। ओटीसी में भी मार्जिन होता है। एक एग्जांपल बोलूंगी, जो ये 5 लाख का लिया, ये बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन ये एक एग्जांपल इसलिए लिया कि यदि वो चीज टर्नओवर आपके शॉर्ट में आती है, तो किस तरीके से कंपनी करती है। मिनिमम बोलूंगी तो पर मंथ, अगर बहुत अच्छी लोकेशन है, सिलेक्शन ऑफ योर शॉप जो है बहुत ही अच्छा जगह, जब कुछ साइट सिलेक्शन की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, फुटफॉल वहां बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक चहल पहल की जगह होती है। जब आप मार्केट में बैठते हैं तो आपकी जो सेल्स का टर्नओवर है वो अलग ही होता है। आप समझ रहे हैं, सेल्स का टर्नओवर अलग होता है। धीरे धीरे जब आप ये इसमें करते हैं, तो आपका, मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपने 5 लाख से 10 लाख का आपने मेडिसिन बेचा, तो इन सेम एग्जांपल अगर आपने महीने में 5 लाख का ओटीसी बेचा, उसका 20% बोलेंगे तो 1 लाख रुपए आपको सीधा उसमें प्रॉफिट होता है। अभी अगर मैं जेनरिक मेडिसिन सिर्फ 2 लाख की आपने महीने में बेची, तो उसका 50% प्रॉफिट सीधा 1 लाख रुपए होता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, सेल्स मिक्स का कॉम्बिनेशन है, एंड अपना जिस पिन कोड में, जिस एक हर व्यक्ति का जो एरिया होगा वो अलग अलग होता है, तो कॉम्बिनेशन वेरी कर सकता है। लेकिन एक 50-50 मान के चलते हैं कि मेडिकल स्टोर है, तो लोगों को ज्यादातर उसमें मेडिसिन ही चाहिए होती है, एंड बाकी ओटीसी एंड जनरल आइटम एंड कॉस्मेटिक, ये सारी चीजें अगर हम मेल्स को देखें तो एक मेडिकल स्टोर में होता है। एंड So answer is that you have to be very careful when you start and very busy location. You need to keep the provision of working capital. तो yes. हमेशा जितना आप अपना स्टॉक के लेवल्स को बढ़ाएंगे, उतनी आपकी सेल्स की कंसिस्टेंसी होगी। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं, कभी कभी वो स्टॉक के जो पैसे आते हैं, सेल्स के आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के आते हैं, शुरू के मंथ्स में उसको यूज कर लेते हैं अपने खर्चों में, और उनके स्टॉक लेवल्स कभी राइट नहीं रहते। क्योंकि आपका स्टॉक लेवल राइट नहीं रहेगा तो कभी सेल नहीं होगी। ये आर्गुमेंट रिटेल के अंदर बहुत जरूरी है कि आपका जितना स्टॉक लेवल रहेगा उतना आप टर्न अराउंड कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मेसी बिजनेस की है where you have drop sales, which means that you come there and you ask for a medicine, it was not available, and ये बहुत बड़ा issue है in pharmacy business. So you need to keep your stock levels up so that you don't disappoint any single person, because you cannot make that. सचिन जी ने क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर भी कभी कभी अपने कमीशन या कट मांगते हैं। You cannot make everybody happy. When you open up a store like high discount store, तब आप सिर्फ कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं, और कस्टमर वो है जो जिसको मेडिसिन पता है, वो हर महीने लेता है मेडिसिन डॉक्टर से। चलो वो एक बार सब्सक्रिप्शन लेता है, लेकिन उसको रेगुलर लेनी है। जैसे अगर आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे हैं, जैसे बहुत सारे घरों में बुजुर्ग जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे होते हैं, उनको रेगुलर वही मेडिसिन लेनी है। जब आपको पता चलता है कि ये मेरी मार्केट में सबसे बड़ी डिस्काउंट की शॉप है, तो आप वहीं से लेने लग जाते हैं। द कस्टमर वुड मूव फ्रॉम यू द डे यू डोंट हैव द स्टॉक। So one of the very strong advice I would do is make sure that you always maintain a strong stock levels and continue to build your stock, and that's where the business would be. Normal turnover for a stock is 12 times a year.
which means that whatever stock you have, you will do almost similar turnover in the month. Now let's go to the second question, which is very important. The two most critical things in this business, and especially in markets like Bombay, which are real estate is very expensive. How do you get locations at 20,000 rupees rental? That's one question. Second, do you help that? Third, also on the license side, which is the pharma license, and government is becoming more and more stricter on that people should have the pharma license. Do you also assist on a pharmacist license coming through? So over to you for the answer, please. जो अगर हम रियल स्टेट की बात करें, 20,000 रेंटल की बात करें, 200 स्क्वायर फीट एक हमको एक इम्पोर्टेंट है। एरिया ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है ऑल ओवर, कहीं पर कम भी होता है, कहीं पे ज्यादा। मेन मार्केट में हमें जरूरत नहीं कि एकदम हमको हाईली जहां पर बहुत ही लाख रुपए का रेंट है, देयर इज नो नीड। एक तो अपनी चॉइस की बात होती है, एक हम स्टैंडर्ड पकड़ते हैं और एक चॉइस की बात होती है। कोई चीज, एक शर्ट 200 रुपए की भी आती है, 2000 की भी आती है, 20,000 की भी आती है। तो आपका वे ऑफ बिजनेस को देखने का तरीका और करने का चॉइस कैसा है, इट्स अप टू यू। अगर हम बात करते हैं कि हमको ऐसा है कि एक अकेले करते, अगर आप बिजनेस फ्रेंचाइजी नहीं लेते तो खर्चे भी आपके, प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्टी का साथ चाहते हैं, तो हम एक आपको स्टैंडर्ड बताते हैं कि आपको 20 से 25,000, मतलब अगर मेन मार्केट से थोड़ा सा आप रेसिडेंशियल अगर अंदर में कहीं लेते हैं, क्योंकि हम ब्रांडिंग मार्केटिंग में बहुत फोकस करते हैं। आप कोई अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं तो आप कस्टमर्स को उस पिन कोड के, उस एरिया के एक एक कस्टमर को ये चीज पता होनी चाहिए कि यदि उसे ब्रांडेड मेडिकल स्टोर्स में अगर मेडिसिन ऑर्डर करनी है तो उसको कहां से ऑर्डर करनी है। तो 20 से 25% एक बहुत हाई डिस्काउंट होता है रिटेलिंग में, जो कि कोई नहीं पे कर रहा है। तो ऑटोमेटिक इसकी माउथ पब्लिसिटी इतनी होती है कि कस्टमर्स आराम से आपके शॉप तक आते हैं और डेफिनेटली लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं तो वो लोग भी सरवाइव करते हैं। मेडिकल बिजनेस एक एसेंशियल में आता है। आज की लाइफस्टाइल जिस तरीके की हो गई है, यूसेज ऑफ मेडिसिन बहुत बढ़ गई है। आपने डिस्काउंट बहुत हैवी दिया, मेन रोड पे भी आप बैठेंगे, जब व्यक्ति विदाउट, आप देखते हैं अपने साथ में विदाउट डिस्काउंट के भी बंदा वो सरवाइव कर रहा है, तो डिस्काउंट के साथ में तो आप सभी की दुकानों का जो उनका कस्टमर का आपकी जो फुटफॉल है वो आपकी ऑटोमेटिक बहुत इंक्रीज होती है। सो मैटर ऑफ एफोर्डेबिलिटी कहेंगे तो 3 महीने तो कंपनी आपके साथ में है कि भाई आप लाख रुपए से कम नहीं करेंगे, कहीं भी करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये एक मोरल सपोर्ट है, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है और ये कॉन्फिडेंस है कि कंपनी को भी पता है कि भर के नहीं देना है। लेकिन एक ये मोरल सपोर्ट साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट की आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करे कि आप एंटर कीजिए मेडिकल फील्ड में। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है एंड डेफिनेटली अगर डिस्काउंट रेट में देते हैं तो आप सोशल काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो नेक्स्ट टू सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा सेकंड में, फार्मासिस्ट के लिए। See, we have a tie-up with the काफी consultants हैं हमारे पास all over India से। As we have already told you, we have a listed company। तो जो बच्चे फार्मासिस्ट कंप्लीट करते हैं, लाइसेंस होल्डर होते हैं, हमारी कंपनी में वो HR के टीम में रिज्यूम्स अपनी ड्रॉप करते हैं एंड दे वांट टू कनेक्ट विद अस, विद एसोसिएट विद अस। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन रिक्रूटमेंट एनी फार्मासिस्ट, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। एंड हम कंसल्टेंट के भी नंबर्स देते हैं कि आपको कोई भी फार्मासिस्ट चाहिए, जब चाहिए तब चाहिए, आप उसके साथ में टाइप करते हैं और आप कॉल करके फार्मासिस्ट अपने लिए मंगा लेते हैं। सो देयर इज कोई भी प्रॉब्लम फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट में बिल्कुल नहीं आती। Sure. And very, very important. So the both things, they would assist you on the location selection and this. And my little bit difference in always representing businesses like pharmacy or any FMCG businesses, don't over expect returns. This is a good business, this is stable business, but this is a business which would give you what I call moderate return and moderate results. Never overly expect, because a lot of times people buy a franchise from Franchiseindia and then come and say, oh, because we were told that very high return would come. There's a perception. End of the day, you want to get a business which pays you for a longer period. अगर आपकी फार्मेसी की दुकान एस्टैब्लिश हो जाती है तो अगले 10 साल 15 साल वो मौके की दुकान हमेशा काम करेगी, चलेगी। बहुत कम, रेयर आपने देखा होगा एक अच्छी दुकान अगर फार्मेसी की अगर वो एस्टैब्लिश हो गई तो वो सालों साल चलती रहती है। तो इवन वो आपको एक स्मॉलर रेगुलर इनकम देती है, दैट्स अ गुड बिजनेस टू बी इन। बट यू नीड टू ऑल्सो लर्न द बिजनेस। इसमें एक और बहुत चैलेंज आता है, जब नए एंटरप्रेन्योर्स फार्मेसी का बिजनेस शुरू करते हैं और वो खुद टाइम नहीं देते तो उनके बिजनेस में लीकेज बहुत होती है, पिल्फरेजेस बहुत होती हैं। सो उसमें शुरू में आपको समझना पड़ेगा आपके अपने बिजनेस को और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एज एन ऑपरेटर, तब आप उस बिजनेस को ज्यादा अच्छा संभाल पाएंगे।
I'll take one more question, which is equally important, and then I'll pass it on to Sonia. I have seen whenever discounting is happening in pharmacy business, earlier तो बहुत ही प्रॉब्लम था, लेकिन अभी इतना नहीं है, लेकिन एसोसिएशन जो है फार्मासिस्ट की, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं कि आप अनफेयर प्रैक्टिसेस करके कस्टमर को अपने पास खींच रहे हैं, जबकि इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उस पे गाइडलाइंस हैं कि इट इज अ राइट ऑफ अ कस्टमर टू गेट दैट, रादर द policy says that customer should never be given at MRP, it should have the right to get discount or whatever needs to be done. And there are now a lot of online players, other players which are also doing great discounting. Have you seen any resistance from local associations of pharmacies जो आके कहते हैं कि आप कैसे डिस्काउंट इतना दे सकते हैं कि दूसरे का बिजनेस उससे इफेक्ट करता है? सी सर, फर्स्ट चीज ये है, मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करती हूँ। 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताती हूँ कि ऑनलाइन फार्मेसी और रिटेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंस क्या है। 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं, उन्हें हम A, B, C कैटेगराइज करते हैं। ए कस्टमर्स वो जो कि इमरजेंसी को लैंड करते हैं, सर फॉर एग्जांपल कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक या कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है, तो वहां पर ऑनलाइन में डिलीवरी में बोल देंगे तो 2 से 3 दिन लगते हैं, प्लस वहां पे डिस्काउंट भी मैटर नहीं करता, बिकॉज इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉल। तो आपको तुरंत जहां पर मेडिसिन मिलती है और आपको जहां एसेंशियल्स मिलते हैं, कस्टमर ए कैटेगरी का वहां पे जाता है। बी कैटेगरी हम ये बात करते हैं जो कि रैंडमली बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर को विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आज इन्फेक्शन हुआ है, आज पेट दर्द है, आज बुखार है, तो आपको आज दवाई लेनी है। आप 2 से 3 दिन का वेट नहीं करेंगे और डेफिनेटली आप उसके लिए डिस्काउंट भी नहीं सोचेंगे। तीसरी चीज, जो ये चीज मैं बोलूं, इसके लिए मेडिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रॉनिकल डिसीज है जैसे कि बीपी, डायबिटीज और जो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो है व्यक्ति, ये हमेशा ऑनलाइन देखते हैं कि ठीक है ये चीजों को, और वो चीजों को मैनेज करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी हम कर रहे हैं, उसमें भी हम ये सारी चीजें, लेकिन हम सेम वे फेस कर रहे हैं। वी आर द कंपनी, वी आर ऑलरेडी सप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, मोर देन 1000 मेडिकल्स में हम सप्लाई कर रहे हैं मुंबई में। सो वी आर फेसिंग दिस कि ये मेडिकल स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज की सुविधा आपको तुरंत मिलती है, जिसमें कूलिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड नहीं होता है, वो चीज आपके नीचे से आप चलते फिरते चीजों का अगर आप ले सकें तो बहुत ही आपके लिए वो चीज होती है, यूजफुल होती है। एंड तीसरी चीज जो कि मैंने इसलिए आपको बताया कि एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन एक मेंबर्स के लिए होते हैं, हमारे सबके अच्छे के लिए होती है, उसके साथ में सभी ऐड होते हैं, लेकिन ये एक एसेंशियल सर्विस में आता है। एसेंशियल मेडिसिन एसेंशियल सर्विस में आता है, ये एक कस्टमर्स का राइट है और ये बिजनेस स्ट्रेटेजी भी कह लीजिए। अगर मैंने कोई चीज, सबके परसेंटेज फिक्स्ड है, फिर भी लोग डिस्काउंट नहीं ऑफर करते। अगर आपने कोई चीज ली है और आप अपने शेयर से चीजों को डिस्काउंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट में कोई चीज देना कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है या गलत नहीं है। और मेडिसिन जैसी एसेंशियल चीज में जितना भी आप डिस्काउंट दें तो उसमें ऐसी कोई इशू नहीं आती है। एंड वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन हिंड्रेंस एंड ऑल, सो इट्स सेफ टू डू दैट। पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली वो चीज आपको हैंडल करनी होती है, बट कोई इसमें ऐसा एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन या इश्यूज नहीं है, because we are not a part of the association, we are not taking medicine from that association, so you are not any associated or member हैं आप उस association के, जो आपको rules and regulations सारे follow करने होंगे। आप medicines हमसे लेते हैं and we provide your medicines and you can definitely do the business, so no issue at all. Very, very important, and this was an issue at one point in time, but co-association was very, very particular, and the distributors were not applying the medicine, but now it is coming from them, and distribution has now changed and it's now become very organized in that sense. So, and there are many platforms doing it. Future, what she said is also about what I call super hyper local. Super hyper local means किसी कोई मेडिसिन में 15 मिनट से 30 मिनट तक पहुंचा सकूं, बेशक उसका इंटरफेस ऑनलाइन हो या फिजिकल स्टोर हो, दैट इज गोइंग टू बी फ्यूचर। सो ये भी कंपनी जो करेंगे, जब ये स्टोर्स इनके साथ बन जाएंगे तो ये O2O करेंगे, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, विच मीन्स अगर आप शायद डिलीवर ऑनलाइन पे ऑर्डर करेंगे तो जो आपके पास वाला स्टोर होगा वो आपको लास्ट माइल डिलीवरी कर देगा। सो दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट एंड द बिगेस्ट फ्यूचर कमिंग इन। सो over to you, Sonia, for taking questions from the audience, and also if you can take some specific questions from what people have asked, it will be also very useful. Right. I think we've answered many of the questions, and I did see Rajneesh answering them.
all the questions. So I'll take some of the questions which I think would benefit everybody. And Sanjay ji, my first question, because going through the presentation and the financials, overall the investment that we have projected is about 12.5 odd lakhs. And is puri investment mein one component which I could not locate is the investment on the basic, I would say, infrastructure, जो आपका interiors होता है, वो मेरे ख्याल से इसमें included नहीं है. And looking at some of the pictures of the outlet, I understand there is some component of investment that would go there also. So what would that investment be, and when we add आपका total जो outlay होगा investment पे, वो कितना रहेगा? सी 1251 जो कि कंपनी लेती है, मैंने जब आपको स्टेप्स दवा डिस्काउंट के किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. स्टेप नंबर 3 कि 20 से 25 डेज लगते हैं फर्नीचर इंस्टॉलेशन के लिए. सी यहाँ पर हमारे जो ऑलरेडी होलसेलिंग में जो बंदा कॉन्स कर रहा है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको वो इन्वेस्टमेंट फर्नीचर हमसे ही करवाना है, लेकिन यस देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस है तो आपको करना वैसा ही है. इट अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग होती है आपकी 200 स्क्वायर फीट के लिए 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक. सो इट्स डिपेंड अपॉन योर स्टाइल, योर चॉइस कि हमारा जो है 2 से 2.5 लाख के बीच में ये चीज होती है. पर कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, उसकी पूरी चीज आपको मिल जाएगी जब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं. सो यू कैन कंपेयर दिस कि अगर 200 स्क्वायर फीट की जगह हम 2 लाख में हम करके देते हैं, बट यू विल हैव अनदर गुड ऑप्शन विथ यू एंड इन अ मीन सेम टाइम यू विल फॉलो द पैटर्न फॉर द कॉन्सेप्ट. You can go with that. There is no compulsion that कि आपको फर्नीचर हमसे ही करवाना है, but it will take a 2 to 2.5 lakh more. मतलब ऑलमोस्ट बोलूंगी तो 15 लाख रुपए तक आपके फुल्ली ऑपरेशनल मेडिकल स्टोर तक हो जाते हैं. Okay, so this would mean that 12.5 lakhs plus an investment of about 2.5 to 3 lakhs is what would get added for the basic infrastructure. The 15 lakh ka would somebody need the initial capital to deploy, and at the same time जो आपने inventory की बात की, we would also advise people to keep certain amount handy for your inventory which you are expecting at a turn जिसका हमारा monthly rotation जो होगा which is 2.5 times. So I'll take some questions also from the audience. And one question which I also did see was on the overall investment they're doing towards marketing and branding. And you also put in your presentation, there's a big investment that you do for local stores. Now, there are two set of marketings, which generally companies would do. And here we are also requesting for a 3 lakh as an initial investment. जो एक फ्रेंचाइज पार्टनर आपको देता है. नाउ दिस 3 लाख इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेड ओवर अ सर्टेन टर्म या ये सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स की ही मार्केटिंग में हम स्पेंड करते हैं? And my second question would also be, what is the franchisee expected to do over and above what you spend on marketing? Yes, see the marketing and मैंने जैसे कि आपको पूरे presentation में काफी जोर दिया कि marketing and branding and promotion, that is the most important thing. जो हमने ये franchisee fees quote की है, this is for the 5 years. And first year, for a first year we do a lot. ये 3 लाख रुपीस आपको पूरा marketing का, जब आप हमारे साथ franchisee लेते हैं तो आपके साथ में एक marketing campaign की पूरी list share होती है कि what exactly we are going to do that. फर्स्ट 3 months हम बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी की, सो दैट दे कैन कम ओवर द ब्रेक इवन पॉइंट, उनको कहीं भी लॉस नहीं आए. और उनकी जो मार्केट में, जैसा कि मैंने कहा कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट अपने एरिया में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली ये चीज है कि अच्छी चीज भी स्लो मोशन में आगे जाएगी. लेकिन यही जबरदस्त कॉन्सेप्ट अगर आपके पूरे एरिया में पता होता है, और ये कैसे पता चलेगा? थ्रू ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन. सो जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसकी एक लिस्ट आपके साथ शेयर होती है कि वेयर एग्जैक्टली वी आर स्पेंडिंग दिस अमाउंट, एंड दिस इज फॉर अ 1 year. एंड फर्स्ट 3 months we are do a very aggressively marketing, just like I tell you कि Facebook, Google, अपना WhatsApp marketing, newspaper ad, very expensive ad as compared to सबको ही पता है, but we are a corporate so we can do that. Bus stop, then paper insertions, so whatever the kind of the marketing we are going to do, that we will share a list of marketing. And 3 months very aggressively, and it's a tenure of purely 1 year. Okay. Now, my other question would also be on the conversion franchisee. So we would also see some interest coming from investors who might be running some of the existing stores. So would you also entertain people who want to convert their existing stores to a Dava discount store? One, and second, if they do that, what are the considerations that you would get on conversion? Yes, तो डेफिनेटली जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर्स हैं तो हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं. 1251 जो पूरा सेटअप कॉस्ट है उनको नहीं लगता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अ ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस, अदर कॉम्प लाइसेंस हैव कंप्लीटेड, इसीलिए उनका मेडिकल स्टोर चल रहा है.
स्टॉक दे हैव स्टॉक, एंड उसके बाद में जो भी चीजें हमने बोली तो उनको वो चीज की जरूरत नहीं है। यस, उनका कहीं मेडिकल स्टोर इस तरीके से नहीं चल रहा है। सो वन इज द अगेन कितने साल पुराना है उनका एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर, ये मैटर करता है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, कोई नई चीज आती है मार्केट में तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। जिन एग्जिस्टिंग मेडिकल्स ने उनका लोकेशन बहुत अच्छा है और उनके एक डेटाबेस, उनका एक मार्केटिंग कस्टमर्स बहुत ही फिक्स्ड है, फिर पिछले 20-25 साल से रन कर रहा है। सो दे डोंट नीड एनी much marketing because they can float a simple message and they can get the conversion fast comparable to new one. So they have to pay a franchisee fees and they have to change the name board, and we will adjust their existing stock in our 26% discount stock by adding some stock in their existing stock. So it can easily, in a matter of only 1 week and 15 days, it can be convert chalta hua medical ko we can convert into a Dava discount franchisee. Yes. Sure, that's interesting. And my other question, because I do see interest coming from different locations where some of our investors have even put the cities they come from. Now, my question would be, one is the markets that you want to enter. Is that Maharashtra that you're currently focusing on, or there are some phases that we can talk about? And my second question would be on the master or a area franchisee, if that is also an option for an investor to take, or you're offering that. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल मार्केट फ्रेंचाइजी, हम उसको मेगा फ्रेंचाइजी कह सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी इन मुंबई, वी हैव सोल्ड अ कपल ऑफ फ्रेंचाइजी, दे आर इन अंडर एस्टैब्लिशमेंट में है, जो कि मैंने आपको शेयर किया। इट्स एन ओरिजिनल पिक्स ऑफ अवर फ्रेंचाइजी जो कि काफी रेडी हो गई है। सो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, यस, वी आर विद द हेल्प ऑफ योर्स, वी कैन प्रोसीड आगे, एंड दिल्ली एंड गुजरात वी कैन डू, एंड मेगा और जो मास्टर फ्रेंचाइजी की हम बात करें, यस, एक फ्रेंचाइजी जब आप लेते हैं इट्स अराउंड 12.51 का अपना पैकेज है, तो 100 फ्रेंचाइजी के अंडर में एक मेगा फ्रेंचाइजी है जो कैटर करेंगे एक जोन में, पूरे एक जोन में। जैसे अगर एक स्टेट ले लेते हैं या एक महाराष्ट्र ले लेते हैं, दे विल हैंडल 100 पिन कोड्स। 100 फ्रेंचाइजी को वो करेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट जरूर एक 3 से 5 CR का होगा, उनका रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन होगा, डेफिनेटली इतना ह्यूज वो है। 100 फ्रेंचाइजी में वो चीज वो आगे करेंगे। तो यस, देयर इज अ ऑप्शन फॉर द मेगा फ्रेंचाइजी। जब हम मिलेंगे तो हम उसको और डिटेल में बात कर सकते हैं। I think we can discuss that case to case. And another question which I had, I did see some of our audience, and while you did clarify during your presentation, but I want to come back to that question again. You said one pin code would have one partner franchisee operating. Now my question is, because every pin code might not have the same potential. So Yes. are we taking that into consideration? अगर हम किसी पिन कोड की बात करते हैं जिसमें हमें सेम पोटेंशियल नहीं लगता, are we combining that, or are we offering something to make that more conducive to that particular location or partner? पिन कोड की बात करूं, अगर हम एक तो स्टैंडर्ड पहले बात करते हैं, और ये केस टू केस, एरिया टू एरिया वैरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंस ऑफ द पॉपुलेशन कि व्हाट एग्जैक्टली वहां पर पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड बात करें तो एक पिन कोड में मिनिमम कहूंगी 150 से 200 मेडिकल्स होते हैं, और उसमें एक पिन कोड में मिनिमम कहूंगी तो 5 से 10 एकदम फेमस एरिया होती है, जो कि अपना पोस्ट वार्ड कह लो या फिर पोस्ट ऑफिस एड्रेसेस के हिसाब से कह लो। 2 किलोमीटर की रेडियस में एक पिन कोड का एक फेमस एरिया होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी देंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल नाम नहीं लेना चाहूंगी, सम ब्रांड्स डू दैट कि नेक्स्ट की 2 दुकान छोड़ करके दूसरी फ्रेंचाइजी सेम ब्रांड की हो जाती है। सो वी डोंट वांट, क्योंकि एक मेडिकल स्टोर एक लाइन में 10 से 15 मेडिकल स्टोर, हर तीसरी चौथी दुकान अपनी होती है, पर वी वोंट डू दैट कि एक आपने हमारी दवा डिस्काउंट ली और नेक्स्ट 2 दुकान छोड़ के 3 दुकान छोड़ के उस गली के आखिरी तक में दूसरी दवा डिस्काउंट हो गई। सो वी विल नॉट डू दैट। काफी ब्रांड्स के साथ में ऐसा हो रहा है कि आपकी एक दुकान है, 2 दुकान 3 दुकान छोड़ के भी दूसरा सेम ब्रांड हो जाता है। सो देयर इज अ नो कॉम्पिटिशन इन हियर। कह सकती हूँ 1.5 से 2 किलोमीटर की रेडियस में एक भी हमारी तरफ से, आपकी तरफ से फ्रेंचाइजी सेम चीज की दवा डिस्काउंट की नहीं होगी। सो मोनोपोली मुझे उस एरिया में पर्टिकुलर उस बंदे की देनी है, इतनी ग्रोथ करे कि वो आने वाले टाइम में इन डाउन द लाइन, आई कैन से 6 to 9 मंथ्स में, वो अपनी खुद की, जब दूसरों की 150 से 200 हो सकती है एक पिन कोड में, तो अपनी ही उस पिन कोड में वो व्यक्ति अपनी खुद की तो 5 से 10 फ्रेंचाइजी की चेन बना सके। इस तरीके की ग्रोथ हम उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं। Sure. And एक और जो मैं आपने locations बोली, so there are 3 states. We are looking at Maharashtra, we are looking at Gujarat and Delhi NCR. So these are 3 states, or we are looking at any other location including South या East. इनमें भी हमारा भी penetration होगा, or these are 3 states that definitely we are moving today we are launching a pan India projects.
बस, लेकिन ये काफी नजदीक है, but ऐसा नहीं है. We have already our presence in a 21 state in a pan India. So can anyone coming to from south or anyone come from the Bengal or Cuttack, so we are able to definitely deliver that. So it's open for the pan India. It's not considered to the only in Delhi or in Gujarat or rest of the state. We have this introduced as a pan India, so we are open with that. Sure, very helpful. And friends, we do see a lot of questions coming in, and maybe I'll reiterate, you don't need, if you have a license and you currently own a pharma license or you are running a store, you can convert. But even if you don't, it is not necessary need to have that pharma license. You need to have a pharmacist at your pharmacy store. So that was a question from Mr. Nadine Khan. And also some of the other questions which I see, I think we've kind of answered all of them. I would only request friends will reach out to all of you, and there might be more information that you might want to seek based on the location, city, and especially on the margins. I see many questions coming in. So we can maybe send you the complete presentation that we have showcased, and we can also share with you the financial projections that we talked about during this presentation. And we will align one day in the coming week where we'll bring all the investors who have shown interest. And if you are local, you want to visit or meet, there can be a possibility. Else we'll have all these communications through a Zoom or a telephonic call. So 23rd of April is the date that we have kept as a discovery day, where we can bring all the prospective investors for a one-on-one call discussion. And in the meantime, our teams at Franchiseindia will reach out to everybody who's come in today. We'll send you the presentation. And we also have the recorded version of the webinar that we presented today on the Facebook page of Franchiseindia Brands, which you can go, you can like the page, and you can have latest updates on all the opportunities that we bring you. And you can see the recording also after we conclude this presentation. So any part that you might have missed, you can check that. And our teams will also send you presentation to go through. And before we close, maybe a message that you want to give to the audience, which has come and been here with us for the last more than 1 hour. So guys, it's मैं ये कहना चाहूंगी सभी के लिए कि it's a right time to invest और right time to think. कोविड में हर किसी का बिजनेस हैम्पर हुआ है, पूरे ऑल इंडिया में कहीं जो भी आप एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन ये पैंडेमिक सिचुएशन में एक ये सपोर्ट भी है आपके लिए और दूसरों के लिए भी कि 20 से 25% का इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट, बात डिस्काउंट की भी नहीं है, इट्स अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी हमारी तरफ से, और एक डाइवर्सिफिकेशन अगर आप सोच रहे हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, इट्स अ राइट टाइम, क्योंकि 24/7 एंड 365 डेज बिजनेस ऑन, तो ये सिर्फ दवा डिस्काउंट और एक मेडिकल स्टोर में ही पॉसिबिलिटीज है. तो if you want to invest and if you want to diversify your business, it's a right time to think about it and get into it. So thank you guys. Thank you so much. Thank you very much. Really appreciate you taking time out and very impressed with your energy level to really do that. It's very good because इस टाइम का माहौल ऐसा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और उसमें हैं. अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी देता है and gives you a light to get into a new business, that's very, very important. So well done. So you have a very strong energy to really give it to everybody to get charged and look after their lives while do it healthy, do it safe with safeties and all the precautions, but always look at starting your own business. So thank you very much. Thanks friends, and reach out to our business hotline number. It's called 97176838838. This has been going on for 1 year. We have done, our teams have worked extremely hard, not even a single day, even with all this pandemic, all these festivals, Holi, Diwali, New Year's, we have not even missed a single day for bringing you new opportunities, and we'll continue to do this endeavor for a very, very long time. So please reach out to us if you are interested in the opportunity, and we will set up your meeting or discussion. So now you want to take up the particular date for a discovery day? We have 23rd of April that we have decided. So that would be next week. And I think next week, 23rd. Next week, next Friday, coming Friday. Yeah, it's Friday next week, 23rd. Yeah. And so we'll fix meetings for that day. And last question, which I want to take is from Sheikh Noor. He's asking, is it 24/7 open store permission available, and any help that yes, you would yes, definitely. See, there's a norms. If you want to go with the 12 hours, you have to enter with a one pharmacist, and if you want to open a medical store for the 24/7, you have to list with the 3 pharmacists. So there is no issue, nothing. आप अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल 24/7 कर सकते हैं. It's a very good thing. And अगर 12 घंटे के लिए करना चाहते हैं तो 1 pharmacist. तो ये sorted बहुत easy है. It's not a hard to deal with that. Right. Absolutely.
And thank you again, friends, for being with us. And we look forward to reaching out to all of you. So 23rd April, which is the next Friday, we'll have all your meetings, calls, virtual calls or telephonic calls lined up. And we've also left our hotline number and email ID. You can reach out to us for any information that you seek in the meantime. And over to you, Archana, for your final closing remarks. So thank you so much, ma'am, for joining in today. Thank you so much, Mihir, for joining in. Thanks for all the effort we have put in. Thank you for this particular webinar. Would like to thank Gaurav sir and Sonia ma'am. Dear participants, thank you so much for joining in today. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. We request each one of you to save this number in your phone book so that you get a regular updates from our side through broadcast message. You can also connect with us at different social handles. We are available at all the different social handles. Please subscribe and join us at the Facebook page of Franchiseindia Brands Limited, because we have a video library of each and every webinar we have done till now. Your each and every suggestions, feedback will help us in improving our process. You can also join and connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn ID. That's the information on your screen. And Sunday is always special for us because we try to bring and give you maximum business opportunity. We invite each one of you to get registration done for our West India show, which will start sharp 4 p.m. where again we are bringing top opportunity from different vertical brands. Representative would come and will represent their business idea with each one of you digitally. And tomorrow, under 298th edition, we invite you to join us journey for Toddler Shodler. That's a different kind of a cafe model we are bringing from you. They are from North India. And tomorrow, team will deliver their business model to you. So please do not miss these two chances. Join us today, 4 p.m. for our regional show. And tomorrow, 12 p.m. under our business opportunity over webinar series. Thank you so much once again for joining in today. Have a very safe day. Thank you. Take care of your good health. Thank you so much. Thanks, Meher. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Thank you.